So, Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So, today in this lecture, we are going to discuss and we are going to delve deep into the southwest monsoon topic of geography. So, before starting it, I just want to tell you that what are the benefits of completing this topic, of making your notes of this topic with me. So, the benefits are that I'll provide crisp and comprehensive notes over it. You don't need to go anywhere apart from these notes. Second thing, I'll provide you decent diagram, decent hand-drawn diagram. I'm not copying from somewhere. No, that is not I'm doing. The shortcuts. I'm just making them for you so that you can replicate them in the main examination as it is. The third point will be conceptual clarity, the but obvious point. I'll be teaching very properly. The fourth point, most important point, starts from here. These were the very basic thing which everyone should fulfill when he is teaching somebody or giving lectures on something. But these four and five points, these are very important. Here I'll be teaching you that how to use this knowledge, how to implement this knowledge so that you can crack the prelims question. In cracking the prelims question. So whatever related PYQs that have came in previous year papers, I'll be putting them into the PDF and I'll be discussing on them. That how you can crack those questions by using the same knowledge which we have created notes upon. And the fifth point will be that in mains, whatever question that have been asked from this particular topic, I'll be generating frameworks on it. I'll be generating 150 to 250 word answer by using the same knowledge which we have in our notes. So these extra enrichment kind of thing I'll be giving to you in this particular video. That's why you should stay with me. You should sit with me and watch this particular video. And you will be rewarded. I'm guaranteeing you. So let's start our topic. तो शुरू करते हैं. तो जो हमारा मॉनसून है, let me select the pen first. Yes. तो ये जो वर्ड हमारा मॉनसून है, ये अरेबिक वर्ड मौसीन से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब सीजन होता है. ठीक है. I have just written simple keywords here that we can replicate in the examination. Then monsoon are rhythmic wind movements. They are double system of seasonal winds. Why double system? Because they see seasonal reversal in wind direction. In winters and in summers, the direction when we see of these monsoon winds, it will be different, and not only different, completely opposite to each other, completely opposite to the way it was flowing earlier. So 2 points, rhythmic wind movements, double system of winds, seasonal winds. Third point, impact area, कि भाई इन्फ्लुएंस कहाँ का है उसका, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका. अब यहीं से जब भी मॉनसून आएगा, आप इसके ऊपर एक बेहतरीन सा इंट्रो यहीं से बना सकते हो और बार बार यहीं से बनाओगे. कुछ बहुत अच्छा कीवर्ड मिल जाए उसको डाल लिया यहाँ पे, वरना इंट्रो तो यहीं उठेगा, यहीं से उठेगा आपके मॉनसून के लिए. इससे ज़्यादा कहीं बाहर नहीं सोच सकते. तब कंटेंट याद होता है जब आप एक ही कंटेंट को बार बार उसी को प्रोड्यूस करते हो.
यहाँ अलग डेफिनेशन लिख ली, कहीं और बुक में वहाँ अलग डेफिनेशन मार्क कर ली, कहीं और करंट अफेयर में कोई और डेफिनेशन मिल गई वो वहाँ अलग मार्क कर ली। कौन सी याद रहेगी? कोई भी याद नहीं रहेगी। इसलिए कुछ कीवर्ड्स उठाओ, उनके ऊपर नोट्स बनाओ एंड जस्ट मग इट अप एंड ट्राई टू वॉमिट इट आउट ऑन द पेपर ईच एंड एवरी टाइम. That will make the content learned. So before getting into the southwest monsoon part of monsoon, first understand the basic concept of ITCZ, because it is going to be a very crucial element when it comes to monsoon. All right, so let first understand about this phenomenon. So ITCZ stands for the इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. अब देख के पता चल रहा है कि इट्स अ कन्वर्जेंस जोन. अब कन्वर्जेंस, हम विंड की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंस हो किसका रहा होगा भाई? ऑब्वियसली विंड का हो रहा होगा, है ना? विंड का हो रहा होगा कन्वर्जेंस. ठीक है, जस्ट अ रफ डायग्राम ऑफ इट, जस्ट अ रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So what is it? It's a belt of low pressure. Belt of low pressure circling Earth near equator, जहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की वो कन्वर्ज करती है. कैसे? ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना, यहाँ से ट्रेड विंड फॉलो होती है. अब ट्रेड विंड तो सीधी सीधी आनी चाहिए, यूं करके, बट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी राइट में बेंड हो जाती हैं और कर देते हैं बेंड. तो अगर उधर से आ रही हैं तो इधर बेंड हो जाएंगी, नॉर्थ से आ रही हैं तो इधर बेंड हो जाएंगी, और जब साउथ में होती हैं तो वो लेफ्ट बेंड हो जाती हैं. तो जब साउथ से आ रही होंगी तो लेफ्ट में बेंड करा. तो यही जो जोन है इसी को हम ITCZ बोलते हैं. ऑलराइट, सो इट्स अ कन्वर्जेंस जोन. अब इसको मैप पे देख लेते हैं. अब देखो ये जो मैप है ना, वर्ल्ड मैप, ये मुश्किल से मतलब 45 सेकंड्स लगती होंगी ड्रॉ करने में, 45 to 50 सेकंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता. तो और उसी समय में ड्रॉ किया हुआ है ये. तो बाय प्रैक्टिस दिस टाइम विल गेट रिड्यूस. ऑलराइट, एंड यू हैव टू डू इट. तो इसमें जब हम जुलाई वाले मंथ में ITCZ की पोजीशन को देखेंगे तो वो किधर होती है? जो रेड वाला रिप्रेजेंटेशन है. और जब हम जनवरी में देखेंगे ITCZ की पोजीशन तो वो ये होती है. कहाँ कहाँ कट कर रही है वो देखते चलो. यहाँ साउथ अमेरिका का पार्ट, देन अफ्रीका, देन इंडिया, फिर ये मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा सा, एंड देन इधर ईस्ट एशिया वाला पार्ट, एंड इट गोज डाउन टू इंडोनेशिया वाला पार्ट फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीका. ऑलराइट, सो यू हैव टू मेमोराइज देम कि एक मोटा मोटा कि कहाँ कौन कौन सी कंट्री से वो पास हो रहा है, और उस तरीके से हम उसको याद कर लेंगे. अब मॉनसून के मैकेनिज्म के बारे में हम सुनते हैं. तो मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में शुरुआती ITCZ के शिफ्ट से होती है. इसीलिए हमने ऊपर ITCZ का जो कंसेप्ट है वो पहले क्लियर कर लिया, वरना फिर प्रॉब्लम होती. तो जब मानसून आने वाला है ना, और मानसून का टाइम पीरियड हम जानते हैं कि भाई वही जून से शुरू होता है, तो उससे पहले कुछ तो तैयारी होगी ना उसको लाने की. ऐसे थोड़ी है कि अचानक से ही आ जाएगा. दे वुड हैव सम प्रिपरेशन, दे वुड हैव सम environmental phenomena happening before coming up of the monsoon. So these are these phenomena कि सबसे पहले ITCZ का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है. अच्छा, ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता क्यों? क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में जो सनशाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम वर्टिकली ऊपर होती है, एकदम वर्टिकली ओवर, जिसकी वजह से इंटेंस हीटिंग होती है उस रीजन की, और उसकी वजह से इंटेंस लो प्रेशर का क्रिएशन होता है. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट.
अब हमने पढ़ा है कि ये जो ITCZ है ये एक लो प्रेशर बेल्ट है, तो जाहिर सी बात है भाई जहाँ पे भी हीटिंग होगी, हीटिंग की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ITCZ वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, बिकॉज लो प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन टू ITCZ. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ITCZ शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स. उसके कारण होता क्या है कि जो ग्रेट प्लेन्स की जो रीजन है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, और लेड टू डिसअपियरेंस ऑफ सदरली ब्रांच ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. मतलब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी और उसकी सदरली ब्रांच भी वो डिसअपियर हो जाती है. बेसिकली सदरली ब्रांच ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर हो जाती है. लेकिन उससे पहले वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि नया कंसेप्ट आ गया भाई. तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है भाई, मेडिटेरियन रीजन से एक जेट स्ट्रीम आ रही है. ये कोल्ड होती है, कोल्ड इन नेचर, जिसके आने की वजह से पूरे रीजन में इट हैपेंस इन, इट्स अ विंटर फेनोमेना. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. इट हैपेंस इन विंटर. तो जब गर्मी आ जाती है और वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने लगता है, तो जो सदर्न ब्रांच है वो डिसअपियर हो जाती है. कैसे? सबसे पहले ये देखो. अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इट इज जस्ट फॉर द क्लैरिटी पर्पस. और इफ समहाउ you get into a situation where you need to show, where the question is demanding from you that yes, you give us the bifurcation of the westerly jet stream, then you can draw. Otherwise there is no need to it. Just I have just draw it here, I've just given it here for the clarity purpose. Alright, so जो westerly jet stream आ रही है भाई, उसका bifurcation हो कैसे रहा है, ये नॉर्थ और साउथ कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ द हिमालय. हम जानते हैं कि भाई हिमालय ये है ना, 884 बहुत देयर मोस्ट हाईएस्ट. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम आ रही है उसका बैफरिकेशन हो जाता है. क्यों? क्योंकि इट वर्क्स एज अ बैरियर. ये जो हिमालय माउंटेन है ये बैरियर की तरफ वर्क करते हैं और जेट स्ट्रीम का बैफरिकेशन कर देते हैं. तो एक तो ये इधर आ जाती है और एक इधर चली जाती है. तो जब यहाँ, और जाहिर सी बात है जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं और ये कोल्ड हैं, तो इट्स सिंपल दैट दे विल बी क्रिएटिंग हाई प्रेशर हियर. अब जब, लेकिन इट्स हैपनिंग इन विंटर, बट व्हेन द समर्स अराइव इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है तो हाई प्रेशर रिमूव हो जाएगा, और जब हाई प्रेशर रिमूव हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है ना, ये डिसअपियर हो ही जाएगी. तो फिर ये इस तरीके से फ्लो होने लग जाती है, सिंगल ब्रांच रहती है. When in summers. तो दूसरा पॉइंट, अब इस ITCZ की शिफ्ट की वजह से क्या क्या हुआ? लो प्रेशर क्रिएट हो गया ओवर इंडिया. दूसरा, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में. इट्स अ बाइपोलर फेनोमेना. देयर इज डुअलिटी ना. अगर कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो कहीं पे हाई प्रेशर होगा, सिंपल. तो अब हम जानते हैं एक बेसिक लॉ है कि भाई जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी. तो जो ट्रेड विंड्स हैं इस ITCZ की शिफ्ट की वजह से, जो ट्रेड विंड्स हैं इट्स ITCZ की शिफ्ट की वजह से वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और साउथ वेस्ट मॉनसून बन के भारत की तरफ आती हैं. उससे पहले डिफ्लेक्शन भी होता है, वो इस मैप के थ्रू मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ. ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इट्स ऑल्सो हैंड रिटन, आई मीन हैंड ड्रॉन डायग्राम here. So can you see the beauty of this diagram? How charming it is looking. If anybody would see, he'll be impressed. Wow. He won't be bothering about the content which you have written because he knows that he has the conceptual clarity. So definitely he would have written the correct points in the theory portion. So that's why when it comes to geography, your diagrams should be very good. And if they are not good, then work upon them, practice over them, you will get very good marks.